my girly pops. This is girl Parul. आज मैं गर्मी में हूँ just because I'm recording some YT video. Whenever I record this video, a specific this video, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, पापा को बोल रहे होते हैं, मम्मी बात कर रही होती है, सबको चुप करा के आना पड़ता है और पसीने में बैठना पड़ता है एसी छोड़ के, सब कुछ बंद करके आई एम हेयर. So now I am telling you something that one of my not look, just listen. पीछे कुत्ते literally भौंक रहे हैं. Ignore him like your ex. When I was blogging, then I used a line that, "Hi guys, this is girl Parul Gupta and welcome back to my channel," whatever. But now something changed in my life. The change is I am fucking big fan of Rebel Kid, aka Apurva Mukherjee, whatever her title is. Just leave it. I am a huge fan of Rebel Kid. How she start telling their stories and enjoying their life, जिसमें बहुत सारे कलेश हो रहे होते हैं, but still she is enjoying their life. And the slogan is प्राण जाए पर aesthetic ना जाए, whatever it is. And please ignore, this is my first story time video and I am doing a lots of fumble when I get constantly talking with someone else. And please, if there is any quality issue problem in video, then please ignore it, just because I don't make my video in front side because I don't feel comfortable whenever I see my face like this and whatever happens in my face, like idhar pasina chal raha and this and that, okay, then I feel comfortable, like. So the point is why I am here. As I say that I am a big fan of Rebel Kid, so I thought like whenever I make a mini sort of video, I always feel very lazy, very careless whenever I edit these videos. I literally I hate editing videos. मतलब इंसान मर रहा हो और उसे एक ऑप्शन मिले कि तुम एडिट कर लो, मैं बोलूँगी भाई मुझे मरना पसंद है, लाइक सीरियसली. मैं इस टाइप की अब मतलब हेट हो चुका है मुझे वीडियो एडिटिंग करने से. इसी के कारण मैंने व्लॉग करना छोड़ दिया, दैट आई हैव टू लाइक एडिट दिस एंड ऐड सॉन्ग्स, ऐड म्यूजिक एंड दिस. मेरे से भाई नहीं होता. इफ़ यू वॉन्ट, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मेरे 1000 and 1 million फॉलोअर्स हैं, बट स्टिल जितने हैं आई एम वेरी ग्लैड. आई नो 100 ही होंगे मुश्किल से, but still I'm very glad. And I'm not making videos for like पैसे कमाने हैं, सब्सक्राइबर्स चाहिए. I am just feeling so good whenever I record such videos and watch with my family that, oh my god, I'm telling this, I'm telling that, and this. So if somebody is interested to edit my videos, then I am already blessed to record a daily vlog. If anyone is interested, please contact me on Insta and whatever. भाई मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने अभी बोला कि please contact me on Insta, but I am fucking not interested to tag my ID there. ऐसा होता है ना यूट्यूब वीडियो से पॉपअप होता है, but I am not interested. भाई तुम्हें कर लेना बस, पता नहीं तुम 100 तो फॉलोअर्स ही है मेरे, उसमें से तो 50 मेरे घर के ही लोग होंगे, तो जस्ट कर लेना, ओके. सो the point is, one of my very closest and dearest some friends that start telling me that why not you record some YouTube videos, you are very good in that, you are so, and this is. And in fact some very less my college friends are also start tolding me like, please make a YT shorts or YouTube videos. I'm really how can I tell you that I feel so good when someone told me to please record some videos. So now I am back with my YouTube videos, and I am not promising that I'm making videos regularly, just because I don't have some a specific mic. आई नो सब बोलते हैं कि इंसान शुरू से बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट करता है, दिस एंड दैट, बट गाइज आई एम इन कॉलेज एंड आई एम लिविंग इन 4-seated गर्ल्स हॉस्टल, सो आई डोंट हैव दैट मच privacy to record this kind of talking videos. As you can see, I have already पसीना so much क्योंकि मैंने कूलर, फैन, सब कुछ, everything is off. And just sorry, just have a minute to appreciate my makeup in pasina.
So if you guys are interested, then please comment me whatever you want to know. Like you have to know my कलेश in my life. Like मेरे में 2 रुपए की भी अक्ल नहीं है मेरे लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ इतने कलेश हुए पड़ते हैं. If you want to know about my boyfriend, if you know about my friends, if you know about anything, like anything related in my life, then please tell me. I have a story. If you are loving kalesh, then please follow me. Then please ऐसा टिक 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 comment down कर दो. And if you know that how I am being so moti, my friends are always asking, then why are you getting moti? I have also a big answer of this question. Then please, the main purpose that I'm recording this video, because I just want to tell you that how's my college life going on. Like what about Chitkara University, how it is, how it was, if you want to get admission or not. If you get admission, that what kind of things that you want to like take with yourself, and this you can understand. Okay, so first is, how did you get admission in Chitkara University? First of all, you have to score very good in 12th class. Obviously, if you have 90 plus, then easily तुम्हारा admission हो जाएगा. Please don't stress, babes. If you are applying for JEE Advanced, then please apply. Go ahead. Whatever you can score, just be confident about your answers. Like चिल करो यार, लाइफ में कब क्या हो जाता है किसी को पता नहीं चलता. सो जस्ट जो तुम मोमेंट जी रहे हो ना, उस मोमेंट को इंजॉय करो. मैंने ये अपनी लाइफ से बहुत अच्छे से लाइक सीखा है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, लाइक जस्ट इंजॉय. लाइफ इज़ नथिंग. आई नो आई एम जस्ट 19, बट आई एम सेइंग दिस वेरी कॉन्फिडेंटली because there is a reason behind every story. नहीं दो हवा नहीं दो, ऐसे ही बहुत गर्मी हो रही है. छोड़ो बैक टू माई कॉलेज लाइफ. सो क्या बोल रही थी मैं, हाँ क्या बोल रही थी, हाँ. तो अगर तुम्हें चित्कारा में एडमिशन लेनी है, तो तुम 12th में अच्छे स्कोर करो. लाइक 90% स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारा ईजिली एडमिशन हो जाएगा. इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड वट एवर, सो गाइज इसमें हो जाएगा. आई एम ऑफिशियली अ BTech गर्ली एंड आई एम डूइंग माई 2nd ईयर इन चित्कारा यूनिवर्सिटी. बट नाउ आई एम 1st ईयर गर्ली एंड मेरे एग्ज़ाम्स बहुत गंदे गए हैं. आई एम प्राउडली सेइंग दिस. कॉन्फिडेंट देख रहे हो. मेक श्योर कि तुम्हारे 1st ईयर एंड 2nd ईयर में बैक ना आए. प्लीज़ प्रे फॉर गॉड. लाइक तुम्हारे कासा होंगे, कासा में मैं ना पॉइंट टू पॉइंट आती हूँ. देन द क्वेश्चन इज़, हमारे कॉलेज में क्या क्या है. हमारे कॉलेज में स्पोर्टोरियम है, लाइक जहाँ पे बहुत सारे गेम्स है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी गेम, यू नेम देम, और वो वहाँ होगा. एंड बहुत अच्छा सा स्क्वायर वन है, लाइक कैफेटेरिया. 2 स्क्वायर वन है एंड एक स्विमिंग पूल भी है जस्ट फॉर फ्यू स्टूडेंट्स. एंड उसके लाइक पे करना होता है समथिंग. एंड इफ़ यू आर अ गर्ल, देन आई हैव अ गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू दैट देयर इज़ 3 हॉस्टल्स एंड उसके ब्रांचेज है. लाइक देयर इज़ अ हॉस्टल नेम कॉल्ड वास्को द गामा हॉस्टल. एंड इफ़ यू आर अ न्यूली स्टूडेंट, देन फ्रेशी, देन आपको कन्फर्म हूँ मैं कि इफ़ यू आर अ फ्रेशी गर्ल, देन आपको वास्को ही अलॉट होगा. प्लीज़ डोंट बी सैड. आप 2nd ईयर में या फिर आफ्टर 6 मंथ आप अपने कमरे चेंज करवा सकते हो. सो there is a hostel name Vasco da Gama and the second hostel name is Pi A, Pi B, Pi C. इसके 3 parts है. And there is a hostel name IBN A, IBN B, IBN C. And there is a hostel name Nightingale A, Nightingale B. So first of all, I told you Nightingale A and Nightingale B has AC with attached washroom, and IBN A, IBN B, IBN C has only attached washroom with cooler. Okay, and there is a hostel Pi A, Pi B, Pi C. There is no any like AC and any attached washroom and not AC anymore. AC तो था ही नहीं कभी, तो AC भी नहीं है. एंड नॉट अटैच वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम्स मिलेंगे, कूलर मिलेंगे. एंड वास्को में जहाँ फ्रेशी गर्ल्स अलॉट होंगे, वहाँ पे ना AC है ना अटैच वॉशरूम है. देयर इज़ ओनली कूलर एंड अ कॉमन वॉशरूम. एंड मैं कॉमन वॉशरूम का सीन बता देती हूँ क्या होता है. इफ़ यू आर अ फ्रेशी, देन यू हैव टू फेस लाइक देयर इज़ 7th 8th फ्लोर इन एनी हॉस्टल.
इफ़ यू गो एनी बिल्डिंग देयर इज़ अ 7, 8, 9, 10th फ्लोर्थ एंड लिफ्ट ऑल्सो होंगे एंड अटैच वॉशरूम अगर तुम ले रहे हो तो ऑब्वियसली 3 सीटेड भी होते हैं, 4 सीटेड भी होते हैं. तो इफ़ यू आर गेटिंग कॉमन वॉशरूम देन विथ 4 सीटेड रूम देन 4 बेड्स होंगे, कबर्ड्स होंगे, the whole floor use that the common washroom. Okay, if you understand then okay. Looking for 3 seated AC, then Nightingale is a perfect option for you. I don't know I'm uploading this or not because I don't feel confident right now at this point because I am getting so anxious about my words because I'm doing a lots of fumble, so I don't feel good right now. And I think I didn't take my medicine. Yes, I take. If you are a hostler then तुम्हारी classes and especially if you are a hostler from BTech girlies then तुम्हारी classes शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक होगी, मैं पहले बता देती हूँ. एंड बीच में 7:30 से 7:50 तक का 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा. एंड इफ़ यू आर इन अदर ब्रांचेज लाइक फार्मेसी, नर्सिंग ऐसा ही कुछ कोर्सेज बहुत सारे होते हैं जैसे BSc, BBA, व्हाटएवर, MBA. तो तुम्हारी क्लासेस सुबह 8 या 9, आई थिंक 9 से 2 के बीच में होंगी. एंड बीच में वैसे 10-15 मिनट का ब्रेक मिलेगा जिसमें तुम्हें दौड़ के आना है, खा के जाना है. एंड दिस a little more advantage than day scholar students that there are some events going on like Dandiya night, neon mirchi night, stand up comedies and this and that, तो वो तुम अटेंड कर सकते हो. एंड फ्रेशर्स आई थिंक 1 मंथ बाद हुई थी हमारी 2024 बैच की, तो आई थिंक 2025 में भी वैसे ही हो. एंड लेट फी जो होते हैं लाइक कोई फ़ी ड्यूज़ है तो वो अब बहुत इम्पॉर्टेंटली लिया जाता है. जैसे कि इफ़ यू आर वेयरिंग चितकारा टी शर्ट एंड wearing a cargos with 6 or 4 pockets, then you are not allowed to wear in the campus during daytime. Remember, during daytime, not in evening time. Have a plain black jeans and blue jeans. These 2 jeans are only allowed in the campus during daytime. Evening time में बच्चे कुछ भी पहन के जाते हैं. Seriously I am telling that मैं तो कार्गोज भी पहन के चली जाती हूँ. इफ़ मेरी क्लासेस ट्विनिंग ब्लॉक में लगती है देन हमारे को फ़ाइन देना पड़ता है. एंड आई ऑल्सो हैव टू पे 50 रुपीज़ फॉर 1 डे जस्ट बिकॉज मेरा पेपर था और मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं जल्दी में वो पहन के चली गई थी, तो मुझे 50 रुपीज़ फ़ाइन देना पड़ा था और अभी तक पेंडिंग है, मुझे देना भी है. तो देयर इज़ अ ऐप कॉल्ड चॉकपैड प्रो ऐप. वहाँ पे आपके सारे लाइक रूल्स, रेगुलेशंस, प्लानिंग, डेट शीट्स, वॉट एवर यू कैन से, वहाँ पे सारे PDFs आते हुए रहेंगे. वहाँ पे आपका मनी शो होगा कि आपने कितना पेमेंट किया है, हॉस्टल का कहाँ से पेमेंट करना है, दिस दैट, आपके ड्यूज़ कितने हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आपके मार्क्स कितने, वो सब कुछ उस ऐप पे शो करेगा. एंड देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड यू हॉस्टल ऐप जहाँ पे आपको गेट पास अप्लाई करना है. ये हॉस्टलर्स के लिए है गेट पास, मतलब यू हॉस्टल ऐप हॉस्टलर्स के लिए है. एंड चॉकपैड प्रो डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर दोनों के लिए है. तो जो यू हॉस्टल ऐप है वहाँ पे आप गेट पास अप्लाई कर सकते हो. बेसिकली गेट पास अप्लाई कर सकते हो और रूम अलॉटमेंट कर सकते हो. आपके पास अगर लिंक आया हो, आप अगर न्यूली स्टूडेंट हो तो आपके पास ज़रूर से लिंक आया होगा. सो या if you have to go out for day out or night out then you have to go and critic. If you want to know the link then please comment me. I have a link, I have sharing you. कुछ ऐसे झूला एंड ऑल एंड गार्डन एरिया भी है घूमने के लिए, तो वो भी है. एंड बॉयज़ हॉस्टल की मैं बात करूँ तो फ्रैंकलिन है, मार्को पोलो, पता नहीं बहुत सारे हैं, मेरे को नाम नहीं पता ऑनेस्टली. बस मेरा एक फ्रेंड रहता है फ्रैंकलिन में, दैट्स वाई आई नो. और बहुत प्यारा सा स्क्वायर 1 है, स्क्वायर 2 है. मैं बता दूँ टक शॉप भी है जहाँ पे लाइक स्टेशनरी के लिए काम होता है, प्रिंट आउट्स, कॉपी, बुक्स, तुम्हें जो भी चाहिए तो वहाँ टक शॉप A या टक शॉप B में मिल जाएगा. और जो उसको स्क्वायर 1 है वो रात के 11 बजे तक खुला रहता है, जो स्क्वायर 2 है वो रात के 8 बजे तक खुला रहता है. एंड जो टक शॉप है जहाँ पे हम प्रिंटिंग करवाएंगे, बुक्स, कॉपी, मतलब बेसिकली स्टेशनरी शॉप जो है, जो टक शॉप 1 है जो स्क्वायर 1 के पास है, वो हमारा शाम के 7 बजे तक खुला होता है. और जो टक शॉप 2 है जो स्क्वायर 2 के पास है, लाइक वो शाम के 4 बजे तक खुला रहता है जब तक डे स्कॉलर्स होते हैं, उसके बाद वो खुला नहीं होता है. और उसके अलावा मैं बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कोर्सेज़ होते हैं. यहाँ के चांसलर भी बहुत अच्छे हैं, इफ़ यू नो देन यू नो. एंड ओवरऑल लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है. बट इनका जो एक न्यू बिल्डिंग बना है ना, लाइक उधर लास्ट में बहुत ऐसे कॉर्नर में जहाँ पे आप आओगे न्यू गर्लीज़ और न्यू बॉयज़, ऑब्वियसली इफ़
गर्ल एंड बॉय बोथ आर वॉचिंग दिस, तो तुम सबसे पहले जहाँ से आओगे तो वहाँ पे पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सेशन होगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, दिस दैट, तुम्हें कार्ड दिया जाएगा, तुम्हें रूम अलॉट किए जाएंगे और एकदम से वो बोलेंगे कि पेरेंट्स का सफ़र यहीं तक था, अब आप अकेले जाइए। तो तुम्हें वो 2 मिनट में अपने आंसू आंसू पोंछ पाछ के लाइक ऐसे 2 रुपए की एक्टिंग करनी है अच्छी सी कि ओ माय गॉड मम्मा मैं तो ठीक हूँ, मैं तो नहीं रो रही हूँ, मैं तो आपको याद नहीं करूँगी, मैं अब कॉलेज लाइफ जीने जा रही हूँ जैसे ये मेरे करण जौहर की कॉलेज लाइफ हो। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट ये एक करण जौहर की मूवी वाला कॉलेज है, देन नो 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 नो, यू आर इन रॉन्ग प्लेस बेबी। एंड स्पेशली वन थिंग, डिस्पेंसरी, या आई रिमेंबर, डिस्पेंसरी एक जगह है जहाँ पे इफ़ यू आर गेटिंग सिक एट एनी टाइम देर आर डॉक्टर अवेलेबल, बट वो 2 रुपए के डॉक्टर है, आई स्वेयर टू गॉड। उसके सामने नीलम हॉस्पिटल है, उसी ने इंचार्ज किया दिस दैट। तो वहाँ पे एम्बुलेंस 24 आवर्स चलते रहते हैं। इनफैक्ट मेरे आने से पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे भी रात के 11-12 बजे डिस्पेंसरी जाना पड़ा था। तो एम्बुलेंस आई थी, उसकी सर्विसेज अच्छी है एम्बुलेंस की। ओवरऑल पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को कैंपस बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है हर एक छोटी छोटी जो चीज़ है कैंपस में वो बहुत प्यार से रखी गई है, बहुत लाइक बाय हार्ट। एंड स्पेशली आई एम हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लब्स इन चितकारा यूनिवर्सिटी। देयर इज़ अ क्लब कॉल्ड C2S2। तो ये बेस्ट क्लब है। इसमें पनाश है जहाँ पे आप मॉडलिंग कर सकते हो, नट सम्राट है जहाँ पे आप एक्टिंग कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं भी हूँ एक्चुअली। ध्वनि है जहाँ पे सिंगिंग हो सकती है, रिफ्लेक्शन ऐसा ही कुछ नाम है। बहुत सारे क्लब्स है, लाइक तुम्हें एंकरिंग करनी है तो लिटरलीज है, बहुत सारे हैं, स्टोरी टाइमिंग, शायरी, सबके लिए वहाँ पे क्लब्स है। एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी थिंग, जस्ट you have to give audition round like 1 or 2 or 3 auditions line. You have to register yourself, then you have to go to the audition round, you have to select yourself, you have to impress the our seniors and some teachers जो हमारे लाइक ऐसे इंटरव्यूज़ ले रहे होंगे, तो वो कर सकते हो। एंड स्टार्टिंग में मुझे ये बात नहीं पता थी कि वहाँ पे लाइक मेंबर्स की भी सिलेक्शन होते हैं। लाइक इफ़ गिव यू अ एग्जांपल, मैं थोड़ा प्रोसेस करूँगी, मैं आपको समझाऊँ कैसे। सो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ इवेंट गोइंग ऑन, देयर इज़ ऑल्सो बिट्स एंड बाइट्स का है समथिंग, एंड हैप्पीनेस क्लब है, लाइक ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं। तो तुम देख लेना भाई, आना तो तुम देख लेना तुम्हें इंटरेस्टेड किस में है और किस में नहीं हो। हैप्पीनेस क्लब में पे करना पड़ता है तुम्हें खुश रहने के लिए, स्पेशली जो तुम मेरी वीडियोस से हो सकते हो। हाँ, स्टेज के सिलेक्शंस कैसे होते हैं मैं वो बता देती हूँ। तो वहाँ पे एक लाइक ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो उसमें ना मतलब जैसे होता है ना हेड, वॉइस हेड मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे गवर्नर, ऐसे वैसे कुछ तो होता है ना, होम मिनिस्टर ऐसे। तो वैसे ना इंसानों की भी ऑब्वियसली इंसानों की कैटेगरीज होती है। मतलब वहाँ पे ना उसकी होती है भाई, तुम वहाँ पे इंटरव्यूज़ दे सकते हो, वहाँ पे तुम बता सकते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों जाना है, क्या जाना है। आई थिंक मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, बट मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ लो, तुम्हें वहाँ जाके ना समझ आ जाएगा। वहाँ बहुत सारे ऐसे। एंड गाइज, इफ़ यू आर अ बीटेक गर्ली और बॉयली बॉयली मतलब बॉयज़, तो हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। मैंने अपना 1 साल वेस्ट किया हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट नहीं करके। यू हैव टू मेक कनेक्शंस इन हॉस्टल, एंड प्लीज़ 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 यू हैव योर माइंड सेट दैट यू हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स इन कॉलेज, लाइक 20-25 लोगों के ग्रुप होंगे और तुम ट्रिप्स पे जाओगे, तो नो 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 नो, ये नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें पहले बता दूँ। एंड मैंने भी स्टार्टिंग में यही सोच के गई थी कि ओ माय गॉड मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, मैं ट्रिप पे जाऊँगी, ऋषिकेश, यहाँ वहाँ घूमूंगी, नाइट आउट करूँगी, क्लबिंग करूँगी, ये करूँगी, चंडीगढ़ जैसा जगह है। बट नो 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 नो, ये चितकारा वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। एक तो तुम्हें चंडीगढ़ बोल के इतना दूर फेंक दिया है, मतलब गाली आ रही है पर मैं बोल नहीं सकती। चितकारा राजपुरा में है, जो कि चंडीगढ़ से 1-1.5 घंटे की दूरी पे है, एक प्रॉपर गाँव में है। तुम्हें आसपास कुछ नहीं दिखेगा। झांसला है पास में, जहाँ पे तुम इतू सी चीज़ ले सकते हो, लाइक अपने स्किन केयर भी नहीं ले सकते हो, डेली यूज़ के सामान, सोप ले सकते हो, शैम्पू ले सकते हो, दैट्स इट। इफ़ यू हैव टू ईट समथिंग लाइक स्ट्रीट फूड्स, देन यू हैव टू गो राजपुरा जा सकते हो तुम। और अच्छे हॉस्पिटल के नाम में ज्ञान सागर हॉस्पिटल ठीक ठाक है। नीलम से तो आई गेस बहुत बेटर है, वो बहुत लूटते हैं भाई, बहुत लूटते हैं बंदे, बच के रहना उनसे, बीमार मत पड़ना बस। सबसे बड़ा अलर्ट मैं यही देना चाहूँगी कि अगर तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे 12th स्कूल के जैसा है तो प्लीज़ हटा देना, क्योंकि यहाँ तुम्हें अच्छे दोस्त नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ सब मतलबी होते हैं, यहाँ सब लायर्स होते हैं, मैं क्या बोलूँ, सारे भरे भरे पड़े यार। तो अकेले रहना,
फ्रेंड्स स्टार्टिंग में बनाना, कनेक्शन स्टार्टिंग में बनाना, सबसे अच्छे से बनाना, लाइक जिससे मतलब किसी से इतना क्लोज मत होना कि तुम अपने सारे सीक्रेट्स, अपने डीप सीक्रेट्स, अपने बॉयफ्रेंड, अपने एक्स, अपने प्रेजेंट, अपने पास्ट सबके बारे में बता देना। ऐसे कोई दोस्त मत बनाना। तुम्हारा सीक्रेट तुमसे अच्छा कोई और स्टोर नहीं कर सकती। फीलिंग वेरी लो, देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर सम स्ट्रेंजर्स। एंड देती हूँ कि मैं ग्रुप 20 में हूँ, G20 में, पारुल गुप्ता। रोल नंबर नहीं बताऊँगी वरना सभी ना स्टॉक कर लेंगे, मेरे मार्क्स देख लेंगे गाइस, मेरा पोल खुल जाएगा। बट ओके लाइक लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, हैकेथॉन्स करो, हैकेथॉन्स के मतलब सर्टिफिकेट्स लिंक्डइन पे अपलोड करो, और तुम लाइक टीचर्स से अपनी जान पहचान बनाओ, लाइक उनसे बना के रखो कि वो तुम्हारे अटेंडेंस लगा दे, कभी थोड़े मार्क्स लगा दे। मतलब क्लास में वैसे बच्चे होते हैं ना यस सर वाले, जो बोलते हैं और टीचर बोलते हैं अरे भाई ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसके लगा दो बिना देखे। तो वैसे बनो, मतलब आगे बैठो। आई नो तुम मेरे जैसी नालायक निकम्मे औलाद हो कि जो स्टार्टिंग के डेज में आगे बैठता है फिर लास्ट बेंच पे बन जाता है। आई नो पर प्लीज़ ट्राई करना कि टीचर से बना के रखो। आई नो फर्स्ट ईयर में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि प्रोफेसर्स होते हैं और सेकेंड ईयर में ट्रेनर्स पढ़ाते हैं, तो ट्रेनर्स से मतलब बनाना थोड़ा ईजी होता है जितना मैंने अब तक सुना है, बट प्रोफेसर से बनाना ईजी नहीं होता है। बट यू आर सो स्मार्ट यार, तुम बना लोगे। आई नो योर सेल्फ। भाई मेरी इंग्लिश की मैंने मदर सिस्टर एक कर दी है, प्लीज़ इग्नोर माई इंग्लिश लेवल। मैं अभी सीख रही हूँ, मैं मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लाइक ऐसे प्रो वाली इंग्लिश कैसे बोल पाऊँ। एंड आई नो, सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बिंग, एंड प्लीज़ इग्नोर माई ममा गई थी, माई फर्स्ट गर्ली बेस्टी, ऑब्वियसली माई फॉरएवर, माई उधर से आँखें मार रही हूँ मुझे क्योंकि मैं सुंदर लग रही हूँ ना। इनफैक्ट ये फिल्टर है बट स्टिल आई एम लुकिंग सुंदर। थू सो इस बोलने लाइक ऐसे नॉर्मल इंग्लिश जैसे सब बोलते हैं, मेरे को आती, मैं बोल सकती हूँ, बट नाउ आई एम फंबलिंग माई सेल्फ, मतलब मैं बहुत फंबल कर रही हूँ। एंड मम्मी आ गई कमर में, इसलिए पता है मैंने सारे पॉइंट्स भूल गई। होता है ना कि जब तुम किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम अपने होश हवास खो बैठते हो, बस वही हुआ है मेरे साथ। नो पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ आस्क मी। तुम्हें एक स्टडी टेबल भी मिल जाएगा जहाँ पे तुम अपने पढ़ाई कर सकते हो, उस पर लाइट भी मिल जाएगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कंप्लेन, पर स्टार्टिंग में हाईलाइट मत होना कॉलेज में, स्पेशली क्लास में, स्पेशली हॉस्टल में, क्योंकि तुम अगर स्टार्टिंग में हाईलाइट हो जाओगे तो वार्डन तुम्हें लाइक ऐसे देख लेगी कि ये बच्ची तो बहुत नौटंकी करती है, ऐसे करती है। तो पहले सबसे अच्छे से बनाना सीखो, उसके बाद फिर तुम जितनी शरारतें करो सब तुम्हें माफ़ कर देंगे। और तुम्हें कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो तुम कर सकते हो, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कुछ भी। तो उसके लिए तुम्हें गेट नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें कुछ ऐसे डेली बेसिस के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो तुम जियो मार्ट कर सकते हो। वहाँ पे एक लौता जियो मार्ट ही चलता है जो अगले दिन डिलीवर कर देता है। लाइक तुम आज ऑर्डर कर रहे हो तो वो अगले दिन रात तक तुम्हें डिलीवर कर देगा। तो इफ़ यू नीड एनी नेसेसरी चीज़ फॉर योर डे टू डे लाइफ देन यू कैन ऑर्डर। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हाँ, मुझे कौन ही स्पॉन्सर करेगा। 100 ही सब्सक्राइबर है मेरे, पर मेरे होश हवास देखो जैसे मैं हुस्न की परी हूँ, पर इट्स ओके गाइस। और गाइस प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड से कुत्तों को इग्नोर करना जैसे तुम अपने एक्स के टेक्स्ट इग्नोर करते हो। तो हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी लाइक रिलेटेड टू योर कॉलेज लाइफ। और मैं तुम्हें सब्जेक्ट्स भी बता देती हूँ यार कि मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सैम में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट थे। लाइक पाइथन थे, और फी थे, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, कासा थे मतलब मैथ्स थे ये, और डेका थे। मतलब डेका और एमसीपी ये ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल नहीं होते। लाइक डेका या तो तुम्हारे सेकंड सैम में आ जाए या फिर फर्स्ट सैम में आ जाए। अगर तुम्हारे फर्स्ट सैम में डेका आता है तो सेकंड सैम में एमसीपी आएगा। ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाओगे, लाइक तुम्हारे ना रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तुम्हारे नेम के स्टार्टिंग, जैसे मेरा नाम पारुल है तो मेरे पी आती है ना, तो मैं लास्ट आती हूँ। तो ये नंबर अल्फ़ाबेटिकली मेरी मम्मी देखो पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रही है कि इसे बोलना भी नहीं आता, होते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, लाइक G1 G2 मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। तो स्टार्टिंग के जो 1 2 3 होते हैं ना वो AI वालों के होते हैं। लाइक मतलब बीटेक में अगर तुम CSC ले रहे हो तो उसमें भी लाइक एडिशनल कोर्सेज होते हैं, लाइक AI साइबर सिक्योरिटी कोर। बस मेरा कोर है। मेरा दिमाग पता नहीं क्यों चला था उस वक्त, क्यों नहीं चला था उस वक्त, कि मैंने क्यों कुछ नहीं लिया। बट अच्छा हुआ नहीं लिया, पर लेना चाहिए था। बट ठीक है, अब हम गलतियों से नहीं सीखते हैं, हम गलतियां करते जाते हैं। यस, यही मेरा लाइन है। मेरी मम्मी पीछे से मेरे को बोल रही है कि ये लाइन गलत बोल रही है, पर मेरा यही लाइन है, हम गलतियों से नहीं सीखते। स्पेशली मैं अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखती हूँ। इनफैक्ट उससे बड़ी गलती कर देती हूँ कि भगवान को लगे है इसने गलती कर दी ऐसे। ठीक है, मेरी मम्मी जा रही है गेट खोल के, फाइनली बाय। थप्पड़ मारेगी मुझे आके, पर ठीक है गाइस, कभी आप लोगों को मेरी मम्मी को चाहिए मेरे वीडियो में तो ज़रूर बताना। वो बहुत ज़्यादा कॉमेडियन है, मेरे से भी ज़्यादा। मैं थोड़ा खुल नहीं पा रही हूँ। लाइक मेरे को अगर एक दो भी रिस्पॉन्स आए ना कि अच्छा था, ऐसा था, वैसे, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बोल पाऊँगी।
यू नो देन बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, सबके सिलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, सब कुछ है, टेनिस है, स्केटिंग्स है, लाइक सब है, सब है, सब है भाई, सब है। कैंपस बहुत बड़ा है। और तुम्हारे ना सेकंड सेम में हमारे जो चांसलर है उसके भी क्लासेस लगेंगे, तो भाई चिल करो भाई, मैं तो यही बोलूँगी कि पढ़ लो बस। लेकिन जो बंदे बोलते हैं ना कि कॉलेज में बस लास्ट मोमेंट पे पढ़ लो तो हो जाएगा, मैं नहीं बोलूँगी ऐसा, क्योंकि मैंने ऐसा किया और मैं पछता रही हूँ अपने सेकंड सेम के लिए। तो तुम पढ़ते रहना, लाइक ठीक है तुम कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ रहे हो पर बीच बीच में पढ़ लेना। और अटेंडेंस लगाने के लिए प्लीज़ क्लास चले जाना, वरना डिटेन हो जाओगे और फिर तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा। री मत लगाना मेरे दोस्तों, प्लीज़ री मत लगाना। री इज़ अ वेरी लाइक माफली फॉर माई मम्मा एंड प्लीज एंड दरख्वास्त है आपसे, इतनी गंदी हिंदी मेरे पापा देखेंगे तो ज़रूर मारेंगे मुझे, पर आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को कोई भी और चित्कारा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो मुझे डीएम करो। अगर तुम यूट्यूब के भी नीचे लाइक ऐसे कमेंट करोगे तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना लूँगी। मेरे को लगा कि ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रही थी तो मेरे को लगा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, नहीं होगा, कवर्ड कैसे होंगे, मेरे कपड़े फिट होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं बता दूँ, इतू सा कवर्ड होता है, इतना, हाँ लाइक लेंथ वाइज होता है। और तुम्हें बेड के आधे पार्टीशन में भी वो मिल जाएगा स्टोरेज, हाफ बेड के स्टोरेज में। और तुम ना लाइक वो मत ज़्यादा कपड़े वपड़े लेके जाओ यार। मैंने तो स्टार्टिंग में बहुत गलती की थी कि मुझे लगा था कि कपड़े पहन के जाना है ऐसे वैसे। हाँ एक चीज़ मुझे याद आया, मैं ये बता दूं कि स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में तुम्हें बोला जाएगा कि अभी यूनिफॉर्म रेडी नहीं है, तो तुम अपने लाइक घर के यूनिफॉर्म लाइक ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जा सकते हो। तुम स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे जीन्स टॉप एंड फैशन के लिए लेके जाना, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आपको स्टार्टिंग में जाते ही यूनिफॉर्म मिल जाएगा, पर मुझे मिला नहीं था। तो मैं इतने कपड़े कम लेके गई थी कि मुझे रिपीट करना पड़ा था। एंड गर्ल्स को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि जब उसे कपड़े रिपीट करने पड़े, वो भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। जीन्स टॉप्स लेके जाना जो तुम क्लास में पहन के जा सको, ज़्यादा रिवीलिंग मत लेके जाना क्योंकि फिर वो अलाउड नहीं करेंगे। बैग अच्छे से ले लेना, बॉटल ले लेना, लैपटॉप ले लेना। इफ़ यू आर अ बीटेक गर्ली देन आप एक लैपटॉप अच्छा सा ले लेना। और क्या, और बस वो चलना चाहिए भाई। और तुम बस दुआ करो कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सैम का फर्स्ट पेपर ऑनलाइन हो, क्योंकि हमारा तो ऑनलाइन हुआ था। हम बेवकूफ़ थे, हमने चीटिंग वीटिंग नहीं की थी और हमारे कम नंबर आए थे। अगर तुम्हारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो प्लीज़ चीटिंग कर लेना, अच्छे से चीटिंग कर लेना, मार्क्स ले आना, क्योंकि हमारे मार्क्स अब नहीं लगते हैं, हमारे ऑफलाइन पेपर्स होते हैं। अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में ऑफलाइन पेपर्स होते हैं तो तुम समझ जाना तुम्हारे से ज़्यादा ख़राब किस्मत किसी की नहीं है। पता नहीं मैं इतना फास्ट क्यों बोल रही हूँ, पर ठीक है यार, मैं बोल लेती हूँ कभी कभी। और आई गेस तुम्हारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सैम के क्लासेस पाइथागोरस ब्लॉक में लगे, मैं ये भी बता रही हूँ तुम्हें। वो बेसिकली एक वो है जहाँ कार पार्क करते हैं ना, पार्किंग स्लॉट टाइप्स, वो वैसा जगह है। बट ठीक है, वो अच्छा है, एसी चलता है, सीटें अच्छी हैं, बोर्ड्स अच्छे हैं, प्रोजेक्टर अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। पर फिर भी मुझे नहीं पसंद है वो। इस सबसे अच्छा मेरे को ट्विनिंग ब्लॉक लगता है, पर उसमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लिफ्ट हमेशा बिजी होता है। इट्स अ प्लेस जहाँ तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, तो प्लीज़ करना। अगर अब मेरे को कुछ और याद आएगा तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर लूँगी, पर अब मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि बस अक्ल नहीं है। मैं थोड़ा अक्ल खरीद के आऊँगी तो मैं तुम्हें कुछ बताऊँगी। एंड आप लोगों को कोई भी क्वेरी है कॉलेज से रिलेटेड, स्पेशली चित्कारा से रिलेटेड, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, प्लीज़ इसे थोड़ा सीरियसली मत लेना, क्योंकि हो जाता है यार। अब तुम्हारे ठीक है, अब बस लड़ना मत किसी से, सबसे बना के रखना। और ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चंस प्लीज़ दूंगी, कमेंट्स कर दो। मैं क्या बोल रही हूँ, कमेंट्स कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। या फिर अगर ढेर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगी। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।